پہ جناب عبدالقیوم انصاری صاحب سیکریٹری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت وہ ٹوپی پہنائیے جو محاورے میں نہ آئے. الحمدللہ. اردو دنوں کی ایشیا کی ایک اہم اور بڑی زبان ہے. بر صغیر ہند کی آزادی کے بعد اس کی اہمیت اور مقبولیت بڑھتی گئی. یہ ہندوستان کی قومی زبانوں میں سے ایک ہے. اردو زبان اپنی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس اور ہمدردی میں دیگر تمام زبانوں کو سرمایہ میں بڑھتا ہے. اس کے اندر حسن کو لڑی کے دلوں پر بیان کرنے آواز کائنات کو خوبصورت اور مرقع پیش کرنے کی جو صلاحیت موجود ہے اس کا اس کام کو انجام دے رہے تھے. اور اسی وجہ سے جب آپ اردو کے بارے میں پڑھیں گے تو باضابطے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ صوفیزم کا ہے. کیونکہ صوفیاء کرام نے اس سے فیضیابی بھی حاصل کی ہے اور لوگوں کو فیض پہنچانے کی کوشش کی ہے. بہرحال اب ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب پروفیسر شاہد احمد صاحب سے مقبولی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور چند نصیحت ہم لوگوں کو فرماتے ہیں. جناب پہلے تو میں تعارف کروں میں پڑوسی ہوں آپ لوگوں کا ناگر بستی کا ستیم کو میرا مقام ملا. اور قاری صاحب ضرور عزیز ہیں ہمارے خوش اخلاق کارگر اور سیاسی میدان میں خاص طور سے تعلیمی نظمہ کے میدان میں ضلع میں کافی ہماری کوشش میں کمی نہیں ہے. ہر لمحہ ہر پل ہماری باتیں ہوتی ہیں یہ لگے رہتے ہیں. اور اتفاق ہے کہ میں گھر بھائی تھا تو دعوت قبول کرتے ہوئے اپنے گھر ہی میں آ گیا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ ساری باتیں ہماری بچپن میں بھی اردو کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا. اردو ڈائریکٹریٹ ایک وبھاگ کی سرکار تھا تو وہ محتاج تھی کہ اگر کوئی کتاب نکل رہا ہے تو اس کو 2 پیسہ بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ تیار ہے. لیکن آج اردو ڈائریکٹریٹ کو آٹونومی دے دیا نتیش کمار جی نے جس کو خود مختاری دے دیا. تو ان کے فنڈ میں جو پیسہ آتا ہے وہ خود خرچ کر کریں کہاں ضروری ہے. اسے کہتے ہیں خود مختاری. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی شاعر ہیں کئی ادیب ہیں اپنی کتابیں لکھتے ہیں چھپا نہیں سکتے ہیں. اس میں ہمارے بیچ میں ڈاکٹر لکھی کے ساتھی بیٹھے یہ بھی مستفیض ہیں اور بے شمار لوگ ہیں. انگریز ہے آپ نے کتاب لکھی بھول ہوئی پاس ہوئی آپ کو اس کا خرچ ملے گا. جو شاعر ہیں وہ اپنی کتابیں لکھ رہے ہیں. تو یہ اردو کے بیداری کے لیے اردو کے فروغ کے لیے بہت بڑی ہے. ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے. وہ لوگ ہیں لگے ہوئے کوشش میں ہیں لگے ہوئے. ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی ہے کئی آدمی منا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر غور کیجیے. کم سے کم اردو اخبار بھی آپ لگا لیا تو کم پیج اردو کی خدمت آپ نے کیا. لیکن ہم خود کر سکتے ہیں شاید 5 بھی نہیں پورے گا. یہ کریم عاجز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ہم سب کو. اردو زبان کے اندر جو قوت اظہار ہے جتنے اسالیب بیان کیے جاتے ہیں اور جتنی بڑی کلاسیکل پوئٹری ہے کلاسیکی شاعری ہے اتنی بہت کم دنیا کی زبانوں کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو کا تعلق فارسی اور عربی جیسی قدیم زبان ہے. فارسی کے لٹریچر میں پوری دنیا میں اردو ڈالا ہوا ہے. مولانا روم شیخ سعدی حافظ شیرازی اور اسی کی بنیاد پر اردو کے جو اولین شاعر تھے انہوں نے فارسی کے تتبع میں اردو کی شاعری کی. اسی لیے سارے کے سارے مضامین سارے کے سارے اسالیب اردو میں منتقل کر دیے گئے. آج اردو آپ کی احساس کمتری کے باوجود مبنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کلاسیکل پوئٹری کلاسیکل لٹریچر اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ بھلائے نہیں دیتا. آج جتنی اردو کی محبت ہے پارلیمنٹ میں لوگ اپنی بات بولتے ہیں تو
उस सनद के लिए उर्दू शेर पढ़ते हैं, और वो भी एक 18 दर्जे के शायर राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, जिनको उर्दू के क्लासिकल शायर नहीं समझा जाता, वो तो दौरे जदीद के शायर। और उर्दू में वैसे शायर कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा है। ये बिस्मिल साहब बैठे हुए हैं, जनाब अब्दुल कयूम साहब बैठे हुए हैं, जो लोग उर्दू में सब बात कहता हूँ। उर्दू के अंदर कमतरी की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि उर्दू को हम लोगों ने बुलाया। उर्दू ऐसा से कमतरी, हम लोग ऐसा से कमतरी के शिकार हैं। उर्दू की मोहब्बत जिन लोगों को है, उनको चाहिए कि उर्दू से ऐसी मोहब्बत पैदा करें जो कलमे अव्वल के मुसलमानों को मंदिर के जरिए से हम लोग को नसीब फरमाए। अस्सलाम दानिशा। मोहम्मद इदरीस साहब और दिगर भाई इंतजार नहीं कि खुशाई बोला काबिली भूला बैठे सबसे उर्दू जानने से ये की गई है उर्दू बेदारी के लिए। तो असल ये है कि उर्दू इस सिलसिले में 2-4 जुमले यूँ के उर्दू की तरह। और काबिले 27 काम इनका है कि इन्होंने लड़कियों के लिए इदारा खोला है और बहुत ही अच्छे इंतज़ाम के साथ बच्चियां तालीम हासिल कर रही, मुख्तलिफ अदला से तालिबात आकर यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, उनकी तरबियत ये कर रहे हैं। और इनके जो यहाँ के साथी हैं जो इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं, सब काबिल मोहतरम हैं। इसलिए कि आधी आबादी ख़वातीन का है, अगर उनको हम नाखादा छोड़ देंगे तो ये पूरा समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, जो हम इससे पहले भी गुज़श्ता साल इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ किया गया था, मुझे आने का इत्तेफाक हुआ यहाँ, उस वक्त भी काफ़ी तादाद में तालिबात मौजूद थी। और अभी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उर्दू के कई लोगों को बेदार किया है। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ये ज़ुबान हिंदुस्तान में तरक्की की है, हिंदुस्तान में पली बढ़ी है और यहाँ इसने फ़रोग़ पाया है। और इस ज़ुबान की खूबी है कि तमाम ज़ुबानों के अल्फाज इसमें शामिल हैं। आपको मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ औक़ात में अंबिया कराम को दुनिया में नाज़िल फरमाया है और उनके ऊपर जो सहीफ़े नाज़िल हुए हैं, जिस खित्ते में अंबिया गए या पैदा हुए, वहाँ की ज़ुबान में सहीफ़े नाज़िल हुए। इसी से आप ज़ुबान की अहमियत और फ़ायदे समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सहीफ़ों को, अपने कलाम को उस खित्ते की ज़ुबान में नाज़िल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, अरबी ज़ुबान में कुरान नाज़िल किया। और मूसा अलैहिस्सलाम के यहूदी इलाके में हुए तो इब्रानी ज़ुबान है, और मुख्तलिफ अंबिया कराम को उसी इलाके की ज़ुबान में सहीफ़े नाज़िल किए। इसी से आप समझ सकते हैं, हम अगर दूसरी ज़ुबान में किसी बात को समझना चाहें नहीं समझ सकते। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है और मौजूदा जो हुकूमत है, हुकूमत हिंद ने अपने नए तालीमी पॉलिसी के तहत मादरी ज़ुबान में तालीम देने के लिए जोर दिया है। हम लोगों की बदकिस्मती कहिए कि हम लोगों ने अपनी ज़ुबान को छोड़कर दूसरी ज़ुबानों में तबाह आजमाई करनी है। अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पर और हिंदी पढ़ाने की शुरुआत बचपन से कर देती है, जबकि ये इस तंजीम के जरिए, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को और तलबा और तालिबात को मुसनाद कराने के लिए मैं घूम रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर बच्चे जब छोटे हैं, उनको पहले कुरान की तालीम और उर्दू की तालीम दी जाए। उसके बाद आप मुख्तलिफ स्कूलों में भेजें और मुख्तलिफ ज़ुबानों में तालीम दें। अभी हमने इसकी अहमियत को छोड़ दिया, इसलिए कि आप जिस कलमा के मानने वाले हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके तशख़्ख़ुस और इस्लामी रवायात और आपके तमाम कुरान और हदीस के
तराजीम उर्दू में है। अगर आपने उर्दू को छोड़ दिया, उर्दू से नाबलद रह गए, तो आपने इस्लामी तसव्वुफ को और इस्लामी अपनी पहचान को खो दी। आज देखिए इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चियां हमारे तमाम जो है बुर्के में है, पर्दे में, क्यों? इनकी तरबियत उस माहौल में दी जा रही है कि इस्लामी तसव्वुफ को जिंदगी का हिस्सा बनाए। पहला हम सबसे तरजीह दें कि जिस कलमा के मानने वाले हैं, जिस अल्लाह और जिस अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, उसके बुनियादी चीज़ों को हम जानकर फिर दुनिया में जिस शोबे में जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने इसको छोड़कर दूसरी जगह चले गए तो आप जो है कभी भी गुमराह हो सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह के दीन में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में। कोई कितना दुनिया में कामयाब हो जाए, अगर उसने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनके तालीमात को छोड़ दिया, वो तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को बता दूं कि हिंदुस्तान में बिहार वाइड स्टेट है जहाँ पर कश्मीर के बाद उर्दू को दूसरी सरकारी को कानूनी हैसियत मिला। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने 1980 में अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के काउशों और कोशिशों से पहली कैबिनेट में 80 के चुनाव के बाद उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज कानूनी दर्जा असेंबली के जरिए दिए और 1600 वादे उर्दू तक मुतरजिम के लिए और नए मुतरजिम के दिए और उस वक्त बहालियाँ हुई मुख्तलिफ ब्लॉक में, जिलों में मुख्तलिफ दफातर दी। लंबे अरसे के बाद वो जगह खाली हुई और अभी हाल के दिनों में मौजूदा हुकूमत के सरबराह जनाब नीतीश कुमार ने 1700 उर्दू वादों को मुख्तस किया। 1700 में पहले तो 250 बहालियाँ हो गई और अभी 1170 की बहाली सिलेक्शन हो चुका है। उनकी पोस्टिंग जनवरी के महीने में कर दी गई। मौजूदा हुकूमत ने उर्दू के फरोग के लिए जो सरकार ने पहले सेकेंड लैंग्वेज बनाया, जिन 7 कामों के लिए उर्दू में हम दरखास्तें अपने मुतालबात ब्लॉक में, जिला में दे सकते हैं, सूबा में दे सकते हैं। इसकी सहूलत फराहम करा दी गई उर्दू वालों की। दूसरा, उर्दू में हम दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में दे सकते हैं। उर्दू में सरकार गजट नोटिफिकेशन निकालेगी। उर्दू में तमाम अहकाम जारी किए जाएंगे हिंदी के साथ। अभी मैंने डीएम समस्तीपुर को और पूरे बिहार के कलेक्टर को लेटर लिखा था, जिसमें मैंने तमाम साइन बोर्ड नेम प्लेट्स को उर्दू में शाये करने के लिखा। 21 तारीख में डीएम साहब ने लेटर 58 डिपार्टमेंट को लिखा है, उसकी कॉपी मुझे भी भेजा उन्होंने। और उसमें तमाम ब्लॉक के दफ्तर में, जिला के दफ्तर दफातर में और तमाम स्कूलों को डीओ को भी दिया कि 15 दिन के अंदर तमाम नेम प्लेट, साइन बोर्ड, सड़कों के नाम उर्दू में लिखकर उनको खबर करें। अभी हमारे जनाब प्रोफेसर सलमान साहब ने और हमारे जो शायर हैं उन्होंने कुछ मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए कहा। मैंने लेटर लिखा हूँ तमाम डीएम को और उर्दू सेल को कि आप जो भी प्रोग्राम उर्दू का करें, इसलिए उर्दू के फरोग के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत हम काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। तो इसके लिए लिखा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम आपका हो तो आप हमारे उर्दू के जो सेक्रेटरी हैं, मैं नाम भी भेजा हूँ तमाम जिलों में, अगले साल से आप देखेंगे कि कोई भी आदमी इग्नोर आपको नहीं कर सकता है। अभी मैं बता दूं कि कल लेटर आया मेरे पास डीएम जहाना का गया था, 28 तारीख को आज ही वहाँ प्रोग्राम है कि आपको आप तशरीफ लाकर मुझे लेटर भेजेंगे। इसलिए आप इतना जल्दी, कुरान अल्लाह ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मामूली हालात आएंगे, सब्र से जायज तरीके से कोशिश करनी है। और मैंने एक तिलावत किया कुरान की आयत का, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ नहीं मगर कोशिश। कोशिश कीजिए, बदलाव आएगा, इनकलाब आएगा। आप अगर जल्दी से नाराज हो गए और गलत कदम उठा लिया तो काम होगा नहीं। और अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये मक्की दौर से गुजर रहे हैं। मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे सुबह की जिंदगी में 13 साल। खाना काबा मौजूद था, आज़ान नहीं होती थी, जमात नहीं होती थी। और वही 13 साल के बाद मदनी जिंदगी में जब हालात साजगार हुए तो सारे अहकाम क़यामत तक के लिए वहाँ चल रहे हैं। इसलिए जल्दीबाजी में आप नाराज मत होइए, नाउमीद मत होइए।
दूसरी बात मैं बता दूं कि उर्दू के फरोग बहुत से लोग मायूस हैं, मैं मायूस नहीं हूँ, इसलिए कि पहले 5 खाली है 20 जगह। हम लोग बराबर सरकार से रास्ते में हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन जगहों को पूर्ण करे ताकि जिन मकासद के लिए ये इदारे कायम किए गए हैं वो मकासद को पूरा कर सके इंशाअल्लाह। दूसरी बात कि बिहार गवर्नमेंट ने उर्दू डायरेक्टरेट कायम किया, पहले उर्दू को बाइख्तियार इदारा नहीं बनाया गया था। फातिमा ज़ोहरा शाह मेडल धीरे धीरे पहनाओ, धीरे धीरे तस्वीर ली जाएगी। इधर देखो। नाज़रीन खातून आयशा परवीन आयशा शहजादे, हफ्सा परवीन आयशा, सबिहा परवीन, हफ्सा परवीन, शाफिया परवीन, उम्मे हबीबा, फकीहा फातिमा, हबीबा, फकीहा फातिमा, फहमीदा खातून, रहनुमा परवीन, फहमीदा खातून, वो मिल जाएगा। मोहम्मद